Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay, this is the lecture of your object-oriented programming using C++. Okay, now in previous lecture we completed our unit 1. In that unit we learn about our procedure-oriented programming and our object-oriented programming. Then we learn the basic concept of our object-oriented programming, that is object, class, data abstraction, data encapsulation, inheritance. Okay, then we'll learn about our structure of C++ program and how to write a simple C program. We learn about the different keywords, tokens and different key concepts. Okay. Now today we are going to learn today we are going to start our unit 2, that is classes and object. Now this unit that is divided into mainly the 6 part, that is first one is class and object. Here we will learn what is class and object, then static data members, then array of object, then concept of constructor with default argument, and last we learn about the destructor. Okay, so these are the mainly 6 part of our unit 2. From this different topic, today we are going to learn about the introduction of classes, limitation of C structure, then specifying the class, creating class, accessing class member, defining member function, and differentiate between the structure and class, what is access specifier and static data member. Okay. Now first we will start with what is class. Now what is class? The most important feature of C++ is class. Class is the most important feature of C++. ये क्या है? एकदम important feature है हमारा C++ language का. Now class is the extension of the structure used in C. हम लोग ने C में एक structure देखा था, उसमें क्या क्या था कि हम लोग अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल हम लोग प्लेस कर सकते हैं इन सिंगल स्ट्रक्चर. ओके, सो it is an extension of our structure. Now the class in a collection of variable of different data type and the functions. Class क्या है? That is a collection of different data type and the function. Okay, so you can say that the class is similar to the structure that is used in C. Okay, it is the important feature of our C++. Okay, now we will see what is the limitation of C structure. C structure हम लोग ने पढ़ा है, तो हम लोग देखेंगे उसकी limitation क्या है. Now the first you can see in the example, that is struct. एक structure है, उसका name है complex. उसमें दो variable है, that is float x and float y. Now we can take the struct complex C1, C2 and C3. Okay, now here the complex number C1, C2 and C3 can easily be accessed value using the dot operator. उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डॉट ऑपरेटर यूज़ करके स्ट्रक्चर में वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. ओके, बट वी कैन नॉट ऐड द टू नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हम लोग ने 3 दो वैल्यू है, उसको एडिशन करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम लोग सी में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग नहीं कर सकते. हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर. डॉट ऑपरेटर से हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, पर क्या हम लोग उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते. एक इसकी लिमिटेशन है किसकी, तो सी स्ट्रक्चर की. Then another important limitation of C structure is that they do not permit data hiding. दूसरी लिमिटेशन क्या है, पहला तो हम लोग ने कि उसके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. दूसरा क्या है कि उसका लिमिटेशन है डेटा हाइडिंग. C++ में हम लोग क्या डेटा हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन. ओके, एंड देन एनकैप्सुलेशन से हम लोग कर सकते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन से कर सकते हैं. ओके, बट हियर इन C structure it does not give the permission to data hiding. The structure member can be directly accessed by the structure variable by any function anywhere in their scope. In other words, the structure member are public member. मतलब जो स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स है, जो भी वेरिएबल्स है, उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय द मेंबर फंक्शन. इसका मेंबर फंक्शन यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं. उसको तो उसमें क्या हो रहा है, उसके जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर है दैट कैन बी पब्लिक. ओके, तो
ये क्या है हमारा दूसरा लिमिटेशन है। फर्स्ट तो क्या है उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा उसका लिमिटेशन क्या है कि हम लोग उसमें डेटा हेडिंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारे लिमिटेशन ऑफ सी स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफाइंग अ क्लास। नाउ आप लोग को क्लास को स्पेसिफाई करना है, तो हाउ यू कैन स्पेसिफाई। नाउ क्लास इज अ वे टू बाइंड अ डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। क्लास क्या है, विद द हेल्प ऑफ क्लास आप लोग डेटा और उसके फंक्शन को बाइंड कर सकते हो। नाउ इट अलाउ द डेटा एंड फंक्शन टू बी हिडन फ्रॉम द एक्सटर्नल यूज। क्लास से क्या होगा, क्लास से आपका जो भी डेटा है और फंक्शन है वो आप लोग एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते, वो हाइड करेगा बाय द एक्सेसिंग द डेटा एंड मेंबर। नाउ जनरली क्लास हैज़ अ 2 पार्ट। क्लास की जो स्पेसिफिकेशन है उसके मेनली 2 पार्ट्स है। फर्स्ट वन है क्लास डिक्लेरेशन, देन क्लास फंक्शन डेफिनेशन। फर्स्ट क्या करना है, आपको क्लास को डिक्लेयर करना है, एंड दूसरा है क्लास मेंबर डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन में क्या होगा, क्लास डिक्लेरेशन डिस्क्राइब द टाइप एंड स्कोप ऑफ इट्स मेंबर। क्लास डिक्लेरेशन में क्या आएगा कि वहाँ पे आपको जो भी क्लास के मेंबर है, फॉर एग्जांपल आपने 2 वेरिएबल लिए हैं और 2 फंक्शन लिए हैं, ओके, तो उस फंक्शन का आपको टाइप एंड उसका स्कोप वो आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना है। देन क्लास फंक्शन डेफिनेशन, उसमें क्या आएगा, वहाँ पे आप लोग को डिस्क्राइब करना है हाउ द क्लास फंक्शन के आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब वो क्लास के जो फंक्शन, फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक फंक्शन लिया है ऐड, ओके, तो ऐड फंक्शन क्या करता है और कैसे इम्प्लीमेंट करता है वो आप लोग को वहाँ पे क्लास फंक्शन डेफिनेशन में वहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, सो दिस आर द मेनली 2 पार्ट्स ऑफ आवर क्लास, दैट इज क्लास डिक्लेरेशन एंड क्लास फंक्शन डेफिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन है उसका जनरल फॉर्मेट है। फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना है, नेम ऑफ योर क्लास। फर्स्ट आप लोग लिखना है क्लास, दैट इज योर कीवर्ड। कीवर्ड क्या है कि उसकी जो मीनिंग है वो पहले से फिक्स रहता है। देन आपको लिखना है क्लास नेम, जो भी आप लोग को क्लास नेम स्पेसिफाई करना है वो। ओके, देन इन योर बॉडी पार्ट ऑफ द क्लास इज एनक्लोज विद इन द ब्रेस एंड द टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। देखो यहाँ पे आप लोग जो क्लास दिख रहा है उसका वो उसकी बॉडी पार्ट किस में एनक्लोज है, वो कर्ली ब्रैकेट में। ओके, और आफ्टर राइटिंग योर और जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है तो आपको दिख रहा है ना नीचे छोटा सा सेमीकोलन, वो आप लोग को वहाँ पे सेमीकोलन लिखना है। ओके, देन इन क्लास बॉडी कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। उसके बॉडी पार्ट में आप लोग को क्या करना है, उसके फंक्शन और वेरिएबल वो डिक्लेयर करने हैं। और जो फंक्शन एंड वेरिएबल है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास मेंबर। देखो यहाँ पे आप लोग को 2 वेरिएबल दिख रहे हैं और नीचे भी एक फंक्शन है, एक वेरिएबल है। ओके, सो वो क्या है आपका, दैट इज क्लास मेंबर। जो भी फंक्शन एंड वेरिएबल है क्लास के अंदर, ये जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, उसके अंदर जो भी वेरिएबल एंड फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास मेंबर। ओके, नाउ देर आर यूजुअली ग्रुप अंडर द 2 सेक्शन, नेमली द प्राइवेट एंड पब्लिक। यहाँ पे देखो आपको 2 सेक्शन है, प्राइवेट एंड पब्लिक। ना व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट एंड पब्लिक। नाउ दिस कीवर्ड प्राइवेट एंड पब्लिक आर नोन एज अ वैल्यूबिलिटी लेबल। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज अ विजिबिलिटी लेबल। वो क्या है, विजिबिलिटी लेबल। एंड दिस कीवर्ड आर फॉलोड बाय द कॉलन। दिख रहा है ना आपको सबके इस प्राइवेट एंड पब्लिक के बाद कॉलन, तो ये जो कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड एज अ विजिबिलिटी लेबल और that is followed by the colon. Okay, now here the class member that have been declared as a private can be accessed only from within the class। मतलब जो भी आप लोग को देखो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, जो भी आप लोग को प्राइवेट डिक्लेयर किया है, जो भी प्राइवेट डिक्लेयर किया है उसका मीनिंग क्या है कि वो सिर्फ आपको को क्लास के अंदर ही आप लोग उसको यूज़ करते हैं। यू कैन नॉट यूज दिस वेरिएबल आउटसाइड द क्लास। ओके, एंड द पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। और नीचे देखो आप लोग के 2, एक वेरिएबल है और एक फंक्शन है, वो पब्लिक डिक्लेयर किया है। तो जो भी पब्लिक डिक्लेयर किया है ना उसको आप लोग क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हियर द यूज ऑफ दिस कीवर्ड प्राइवेट एंड पब्लिक दैट हेल्प यू टू डेटा हाइडिंग। जो आप लोग प्राइवेट एंड पब्लिक जो है उससे आप लोग डेटा हाइडिंग कर सकते हो। सो
ये है हमारा जनरल फॉर्मेट ऑफ पर क्लास डिक्लेरेशन। दैट इज़ फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द क्लास, देन क्लास नेम जो भी आपको देना है वो। देन यहाँ पे देखो दो पार्ट है, प्राइवेट एंड पब्लिक। उसमें आप लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना है और फंक्शन डिक्लेयर करना है। जो भी वेरिएबल आप लोग प्राइवेट रखेंगे वो क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ दैट वेरिएबल एंड फंक्शन इनसाइड द क्लास ओनली, ओके। और जो भी आप लोग ने पब्लिक रखे हैं वो आप लोग क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्लास एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्लास एग्जाम्पल, क्लास डिक्लेरेशन का एक एग्जाम्पल दिया है। नाउ हियर द फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द कीवर्ड दैट इज क्लास। दिख रहा है ना क्लास। देन आइटम, आइटम क्या है वो नेम ऑफ योर क्लास। वो क्या है आइटम, दैट इज द नेम ऑफ योर क्लास। देन नेक्स्ट है वहाँ पे द क्लास आइटम कंटेन द टू डेटा मेंबर एंड द टू मेंबर फंक्शन। देखो यहाँ पे दो मेंबर डेटा मेंबर है दैट इज योर इंटीजर नंबर एंड फ्लोट पोस्ट, एंड वहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं दैट इज गेट डेटा एंड पुट डेटा, ओके। नाउ हियर द गेट डेटा दैट इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू द मेंबर वेरिएबल नंबर एंड द पोस्ट एंड पुट डेटा डिस्प्ले इन देयर वैल्यू। गेट डेटा फंक्शन का यूज़ क्या है, वो क्या करेगा, जो वैल्यू है नंबर एंड कोस्ट उसके लिए वैल्यू ऐसे इनपुट लेगा, और पुट डेटा क्या करेगा, उसका वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ओके। सो ये रहा आपका सिंपल एक एग्जांपल है कि क्लास डिक्लेरेशन का कैसे आप लोग को क्लास डिक्लेयर करना है। और आप लोग को क्लास का नेम लिखेंगे, फिर अंदर उसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें आप लोग को जो भी वेरिएबल चाहिए और जो भी फंक्शन चाहिए वो आप लोग को डिक्लेयर करना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अभी देखो हम लोग ने देखा कि क्लास का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ हियर द वंस द क्लास हैज बीन डिक्लेयर वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ दैट टाइप बाय यूजिंग द क्लास नेम। मतलब जब आप लोग का क्लास डिक्लेरेशन हो जाता है, ओके, तो उसके बाद आपको उस क्लास का वेरिएबल क्रिएट करना है बाय यूजिंग द क्लास नेम। कैसे क्रिएट करेंगे, आपको क्लास नेम का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने एक क्लास बनाया था दैट इज़ आइटम, आइटम नाम का क्लास बनाया था ना, तो उसका अभी आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो आप लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहले आपको क्लास नेम लिखना है दैट इज़ आइटम, देन उसका ऑब्जेक्ट का नेम दैट इज़ एक्स, ओके। सो हियर द मेमोरी फॉर एक्स इज़ क्रिएटेड। जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो उसके लिए उसकी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। नाउ इट क्रिएट द वेरिएबल एक्स ऑफ टाइप आइटम। कौन सा टाइप का वेरिएबल एक्स बनेगा, टाइप आइटम, जो क्लास हम लोग ने पहले वो डिक्लेयर किया था वो, ओके। सो इन सी प्लस प्लस द क्लास वेरिएबल आर नोन एज अ ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस में जो क्लास वेरिएबल है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ देयरफॉर द एक्स इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आइटम। एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास आइटम दैट इज टाइप आइटम, ओके। नाउ यू कैन क्रिएट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट बाय डिक्लेयरिंग दिस वे दैट इज आइटम एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे क्या हुआ कि तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, एक तो एक्स वाई एंड जेड, और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेशन होगी, ओके। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द क्लास विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जस्ट आप लोग को क्या करना है, पहले क्लास का नाम लिखो, फिर जो भी आप लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम लिखो, ओके। तो सिंपली आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एक्सेस द क्लास मेंबर। देखो एक तो हम लोग ने क्लास डिक्लेयर करना सीख लिया, ओके। दूसरा हम लोग ने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लिया। अभी मेरे और एक क्लास में दो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा ना, एक तो क्या है कि नंबर है और दूसरा पोस्ट है। तो उस डेटा मेंबर को हम लोग को एक्सेस करना है। देन हाउ वी कैन एक्सेस, वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो पहले क्या लिखना है, आपका ऑब्जेक्ट नेम, देन आपके फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन आप लोग को लेना है वो, एंड उसकी आर्ग्यूमेंट, ओके। हम लोग ने देखा था वहाँ पे दो वेरिएबल थे दैट इज नेम एंड पोस्ट, और दो फंक्शन थे दैट इज गेट डेटा एंड पुट डेटा, ओके। तो उसमें से मुझे गेट डेटा को यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, पहले लिखूँगी हमारा ऑब्जेक्ट का नेम एक्स जो हम लोग ने पहले क्रिएट किया था, ओके। तो एक्स,
फिर आप लोग को कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, डॉट। सो राइट डाउन डॉट, देन फंक्शन का नेम दैट इज़ गेट डेटा, और वहाँ पे आप लोग को डेटा इनपुट करवाना है, तो राइट डाउन द डेटा दैट इज़ 107.5। आप लोग कोई भी डेटा इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो। ओके, सिमिलरली आप लोग को डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो आप लोग लिखो वहाँ पे एक्स डॉट पुट डेटा। ओके, तो वो क्या करेगा, आपका जो डेटा है वो प्रिंट कर देगा। सो इन दिस वे यू कैन एक्सेस द डेटा मेंबर बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट नेम, देन डॉट, फंक्शन नेम, और आर्ग्यूमेंट है अंदर तो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हाउ टू डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन। अभी हम लोग को मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है। देन द मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइन इन टू प्लेस। मेंबर फंक्शन है तो हम लोग दो प्लेस पे उसको यू कैन डिफाइन इन टू प्लेस। फर्स्ट वन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन और इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। मतलब जो मेंबर फंक्शन है उसको आप लोग क्लास के बाहर भी, क्लास डेफिनेशन के बाहर भी लिख सकते हो, और क्लास डेफिनेशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल irrespective of the place of definition the function should perform the same task। मतलब आप लोग बाहर डिक्लेयर करो या अंदर डिफाइन करो तो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, नाउ द कोड फॉर द फंक्शन बॉडी कुड बी इनिशियली इन द बोथ द केस। मतलब आप लोग ये जो मेंबर फंक्शन है वो डिक्लेयर करना आप लोग बाहर भी कर सकते हो और अंदर भी कर सकते हो। जहाँ पे भी आप लोग डिफाइन करेंगे वो सेम वर्क करेगा। ओके, सो पहले हम देखेंगे आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। नाउ द जनरल फॉर्मेट ऑफ द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इज, यहाँ पे देखो आप लोग ने फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द रिटर्न टाइप, देन क्लास, देन यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटर। यहाँ पे आप लोग को दो कॉलन यूज करने हैं, दैट इज द अवर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देन आप लोग को लिखना है फंक्शन नेम, फिर लिखो आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन एंड फंक्शन बॉडी। नाउ यहाँ पे देख रहे हो आपको दो जो कॉलन दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसको क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इट टेल द कंपाइलर दैट द फंक्शन नेम बिलोंग्स टू द क्लास नेम, दैट इज द स्कोप ऑफ द फंक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द क्लास नेम स्पेसिफाई इन द हेडर फाइल। मतलब ये क्या आपको डिक्लेयर करेगा कि जो भी आप लोग ने फंक्शन डिक्लेयर किया है फंक्शन नेम से वो किस में बिलोंग करता है, वो क्लास को बिलोंग करता है। ओके, वो आप लोग को कंपाइलर को इंडिकेट करेगा। ओके, वो क्या इंडिकेट करेगा कंपाइलर को कि जो आपका जो फंक्शन है वो इस क्लास को बिलोंग करता है। ओके, सो द आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन दैट कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द मेंबर फंक्शन गेट डेटा एंड पुट डेटा एज द डिस्कस इन अबाउ मे बी कोडेड एज फॉलो। देखो यहाँ पे गेट डेटा एक फंक्शन है तो आप लोग को यूज़ करना है, तो पहले लिखो वॉइड, फिर क्लास नेम में आप लोग का क्लास नेम क्या था, आइटम। देन आप लोग को ऑपरेटर लिखना है स्कोप रेजोल्यूशन दैट इज दो कॉलन कर दो, देन जो फंक्शन है उसका नाम लिखो। ओके, सिमिलरली पुट डेटा भी आप लोग को वैसे ही लिखना है। सो इन दिस वे यू कैन define the class outside define the member function outside the class definition। then यहाँ पे देखो कि कोई भी member function है now then this member function have some special characteristic that may often use in a program development and this characteristic are, मतलब कोई भी मेंबर फंक्शन रहती है उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रहती है जो हम लोग उसको हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, पहला तो कि सेवरल डिफरेंट क्लासेस कैन यूज़ द सेम फंक्शन नेम, मतलब अलग अलग क्लासेस सेम फंक्शन नेम यूज़ कर सकते हैं। देन द मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ दैट क्लास द नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट डू। मतलब एक मेरा फंक्शन है उसमें मैंने एक डेटा लिया है फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, उसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो क्या होगा कि जो वो क्लास है उसके जो मेंबर है वही वो मेंबर फंक्शन है वही वो डेटा यूज़ कर सकता है, जो आउटसाइड मतलब कोई भी दूसरा क्लास उसको यूज़ नहीं कर सकता है। देन अ मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। मतलब एक मेंबर फंक्शन जो है वो दूसरे मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकता है, तो वहाँ पे आप लोग को डॉट ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत
नहीं है. ओके, सो दिस आर द सम कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एसोसिएट विद द मेंबर फंक्शन. देन हमारा नेक्स्ट टाइप था दैट इज इनसाइड क्लास डेफिनेशन. मतलब मेंबर फंक्शन को आप लोग क्लास के अंदर, क्लास डेफिनेशन के अंदर ही डिक्लेयर कर देते हो. ओके, सो हियर अनदर मेथड फॉर डिक्लेयरिंग द मेंबर फंक्शन इज टू रिप्लेस द फंक्शन डिक्लेरेशन बाय द एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास. मतलब यहाँ पे आप लोग ने क्या किया कि डायरेक्टली उसकी डेफिनेशन ही लिख दी, तो वहाँ पे आप लोग को क्लास को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. पहले हम लोग ने दिखा था ना कि दो हम लोग ने क्लास दिए थे, वॉइड गेट डेटा और दूसरा वॉइड पुट डेटा. तो हम लोग ने सिर्फ वहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया था, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी. यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, उसकी डेफिनेशन लिखी है तो उसको डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ when the function is defined inside a class, it is the treat as a inline function. वो कैसे ट्रीट होगा, that is called as a inline function, and only the small function are defined inside the class definition. मतलब एकदम छोटा और छोटे फंक्शन रहेंगे वही हम लोग इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे एक क्लास है आइटम, उसमें दो वेरिएबल है दैट इज इंटीजर नंबर, फ्लोट कोस्ट, और दो फंक्शन है गेट डेटा और पुट डेटा, जो क्लास के इनसाइड ही डिक्लेयर कर दिए हैं. इनसाइड डिक्लेयर किए तो हम लोग को उसको डिफाइन किए हैं तो हम लोग डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है फॉर रैप द डिक्लेयर अ क्लास स्टूडेंट हैविंग द डेटा मेंबर, रोल नंबर एंड द नेम, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले द डेटा फॉर वन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि एक स्टूडेंट है उसके दो डेटा लेना है, तो आपको रोल नंबर एंड नेम क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है एंड डिक्लेयर करना है. ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का. उसमें एक तो उसका डेटा कौन सा आएगा, इंटीजर रोल नंबर, एंड कैरेक्टर में आएगा उसका नेम. देन हमारे मेंबर फंक्शन कौन से रहेंगे, गेट डेटा एंड पुट डेटा. गेट डेटा से हम लोग उसके जो वैल्यू है वो इंसर्ट कराएंगे और पुट डेटा से वैल्यू प्रिंट करवाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्लास के आउटसाइड में दो फंक्शन है उसको डिफाइन किया है. देखो यहाँ पे गेट डेटा का तो पहले कैसे लिखेंगे, आउटसाइड. देखो यहाँ पे हम लोग ने अभी पढ़ा है कि दो यू कैन डिक्लेयर और डिफाइन द मेंबर फंक्शन बाय टू वेज, आउटसाइड और इनसाइड. यहाँ पे देखो क्लास डेफिनेशन के आउटसाइड पे ये जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया है, तो आप लोग को कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. सो वॉइड स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम दैट इज गेट डेटा. तो यहाँ पे पहले लिखो एंटर रोल नंबर और रोल नंबर एंटर करवाओ, एंटर नेम और नेम एंटर करवाओ. ओके, देन वॉइड स्टूडेंट पुट डेटा. यहाँ पे दूसरा आप लोग को फंक्शन डिफाइन करना है दैट इज़ योर पुट डेटा. ओके, सो यहाँ पे भी आप लोग को सिमिलर ही लिखना है, वॉइड स्टूडेंट जो हमारा क्लास नेम है वो, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पुट डेटा, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सी आउट से दोनों डेटा प्रिंट करवाने हैं. सो आपका मेन फंक्शन में क्या आएगा, एक तो आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो स्टूडेंट का. सो हमारा क्लास नेम है स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट है एस, देन क्लियर स्क्रीन, देन एस डॉट गेट डेटा, जो ऑब्जेक्ट हमने क्लियर किया तो उसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है. देन वी कैन यूज़ डॉट ऑपरेटर. ओके, तो एस डॉट गेट डेटा और दूसरा है डॉट पुट डेटा. तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका जो रोल नंबर एंड नेम एंटर किया है वो आपका डिस्प्ले होगा. ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर taking the data from the student, that is roll number and name. Then after that it display the data. Then दूसरा है declare the class employee having the data member, employee ID, designation, salary, accept and display the data for one object. मतलब यहाँ पे भी आप लोग को सिमिलर वही करना है. यहाँ पे पहले स्टूडेंट में हम लोग का क्या था, दो ही डेटा था, इसका रोल नंबर एंड नेम. यहाँ पे आप लोग के तीन डेटा है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, देन उसका डेजिग्नेशन आएगा, देन सैलरी, देन दो डेटा है आपका, एक तो गेट एंड पुट. तो देखो यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन पहला वाला एज वाला जो प्रोग्राम है उसमें क्या किया था, हम लोग ने जो मेंबर फंक्शन है उसको डिक्लेयर किया था आउटसाइड द क्लास, और यहाँ पे जो हम लोग ने क्या किया है, मेंबर फंक्शन है वो डिक्लेयर किया है इनसाइड द क्लास. तो आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे क्लास की डेफिनेशन लिखने, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ने वो डिफाइन कर दिया है. सो
और उसके बाद मेन फंक्शन में उस जो डेटा है उसको प्रिंट करवाया है। ओके, सो ये सिमिलर है प्रोग्राम है दोनों, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले में हम लोग ने जो मेंबर फंक्शन थे वो आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर किए थे, और इस प्रोग्राम में हम लोग ने मेंबर फंक्शन है उसको इनसाइड आवर क्लास डिफाइन किया है। सो तो समझ में आया व्हाट इज डिफाइन, हाउ टू डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास। Now what is the difference between structure and class? Now structure collection of structure is a collection of variable of different data type. Structure क्या है? Collection of variable of different data type. Similarly the class is also the collection of variable of different data type and the function. Okay, now here the struct keyword is used to use while declaring the structure. आप लोग को स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है तो आप लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? स्ट्रक्ट। और आप लोग को क्लास डिक्लेयर करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? यू हैव टू यूज़ द क्लास कीवर्ड। ओके, देन स्ट्रक्चर वेरिएबल आर क्रिएटेड। स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो आप लोग को क्रिएट करना पड़ता है, वेल द क्लास वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड विच कैन बी कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। स्ट्रक्चर वेरिएबल है दैट आर क्रिएटेड, और जो क्लास वेरिएबल है दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड एंड दे कैन बी कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। Now here the function are not enclosed in the structure definition. स्ट्रक्चर डेफिनेशन है उसमें आप लोग को फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, पर क्लास में हम लोग क्या है कि फंक्शन को इनसाइड द क्लास हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देन द स्ट्रक्चर नो प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर डिक्लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग मेंबर को पब्लिक और प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट इनसाइड द क्लास मेंबर एंड मेंबर फंक्शन कैन बी डिक्लेयर एज अ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा मेंबर को प्राइवेट और पब्लिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट क्लास में हम लोग प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इन स्ट्रक्चर डेटा हाइडिंग इज़ नॉट अचीव। स्ट्रक्चर में डेटा हाइडिंग हम लोग नहीं कर सकते, while in the class the data hiding is possible. Okay, now what is the syntax of a structure? स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है, then you have to use the keyword struct, then स्ट्रक्चर का नेम और नीचे डायरेक्टली आपके मेंबर है वो डिक्लेयर कर दो। ओके, और क्लास का डिक्लेयर करना है, then you have to write down the keyword क्लास नेम, फिर वहाँ पे पब्लिक है और प्राइवेट है वो आप लोग के जो मेंबर फंक्शन है और मेंबर वेरिएबल है वो उसको डिक्लेयर करना है, और ब्रैकेट है उसके लास्ट में आप लोग को सेमीकोलन करना है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अवर स्ट्रक्चर एंड क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पे व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? द मेमोरी स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर एंड नॉट व्हेन द क्लास इज स्पेसिफाइड। मतलब जब आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब उसके लिए मेमोरी एलोकेशन होती है, जब आप लोग ने क्लास क्रिएट किया है तब उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। ओके, सो द actually the member function are created and the place in the memory space only once when they are defined as a part of the class specification. Okay, now here all the object belong to the class use the same member function. Those separate space is allocated for the member function when the object are created. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे क्लास है, उसमें दो वेरिएबल है दैट इज नेम एंड पोस्ट। ओके, तो और दूसरा भी दो फंक्शन है गेट डेटा एंड पुट डेटा, दो फंक्शन है। ओके, तो मैंने ये जो क्लास है उसके मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो एक्स वाई एंड जेड 3 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए। तो ये तीनों के लिए जो मेंबर फंक्शन है, जो हमारे फंक्शन कौन से है? गेट डेटा एंड पुट डेटा। तो वो एक ही फंक्शन मतलब उसके लिए एक ही मेमोरी स्पेस अलोकेट होगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग फंक्शन की मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। ओके, बट उसके जो वेरिएबल होता है उसके लिए अलग अलग स्पेस अलोकेट होती है। सो हियर द स्पेस फॉर द मेंबर वेरिएबल इज अलोकेट सेपरेटली फॉर द ईच ऑब्जेक्ट। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उसके वेरिएबल जो है मेंबर वेरिएबल है उसके लिए अलग अलग स्पेस होगी, बट
मेंबर फंक्शन, जो फंक्शन है उसके लिए अलग अलग स्पेस नहीं होगी। ओके, तो एक ही फंक्शन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस इमेज। ओके, नाउ हियर द तीन ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। तो उसके लिए जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, तो ये तीनों के लिए अलग अलग स्पेस होगी। बट जो फंक्शन है दो, तो वो तीनों के लिए कॉमन ही रहेगा। समझ में आया कि जो वेरिएबल है वो अलग अलग उसके लिए स्पेस अलग अलग डिक्लेयर होगी, पर जो मेंबर फंक्शन है वो तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही मेंबर फंक्शन रहेगा तो तीनों ऑब्जेक्ट वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेमोरी एलोकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट। उसमें क्या क्या रहेगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के जो मेंबर वेरिएबल है उसके अलग अलग स्पेस होगी, बट जो मेंबर फंक्शन है तो वो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। समझ में आया? देन नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। नाउ here the data heading is one of the most important feature of our object oriented programming। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें जो डेटा हेडिंग है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर। नाउ इट अलाउ prevent a function of the program to access directly the internal representation of the class type। So here the access specifier in C++ class define the access control rules। okay, ये access specifier क्या करता है, वो डिफाइन करता है एक्सेस कंट्रोल रूल्स। तो कोई भी हम लोग डेटा है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ देर आर मेनली 3 कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस इन C++, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। in our C++ there are mainly 3 access specifier available, that is public, private and protected। okay, now this access specifier are used to set the boundaries for the availability of the member of the class, be it data member or data function। वो क्या करता है, it set the boundaries for the data member and the data functions। okay, now we will see about these 3 access specifier one by one। okay, now first we'll start with what is public। now what do you mean by public? Public means all the data members declared under public will be available to everyone। मतलब जो भी डेटा मेंबर आप लोग ने पब्लिकली डिफाइन किया है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, वो कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है। सो द डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय द अदर क्लासेस ऑल्सो। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है y, ओके, इंटीजर y, और दूसरा है हमारा फंक्शन दैट इज वॉइड डिस्प्ले, वो डिक्लेयर किया है एज अ पब्लिक। तो क्या कि ये जो है कोई भी हमारे क्लास है वो कोई भी क्लास और दूसरा क्लास भी ये जो वेरिएबल है एंड फंक्शन है उसको यूज़ कर सकता है। सो इट कैन बी यूज बाय एवरीवन। जो भी डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन मेंबर फंक्शन आप लोग ने पब्लिक डिक्लेयर किए तो उसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसको दूसरा क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट? नाउ द प्राइवेट कीवर्ड मीन्स दैट नो वन कैन एक्सेस द क्लास मेंबर डिक्लेयर प्राइवेट आउटसाइड द क्लास। मतलब जो भी आप लोग ने यहाँ पे क्लास मेंबर डिक्लेयर किए हैं ओके एज अ प्राइवेट, वो हम लोग क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ समवन ट्राई टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर दे विल गेट द कंपाइल टाइम एरर एंड बाय डिफ़ॉल्ट द क्लास वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन आर प्राइवेट। ओके, देखो यहाँ पे कि जब आप लोग कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल है इंटीजर y एंड वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन है उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया है। ओके, जब हम उसको प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो वो क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और दूसरा क्लास उसको यूज़ करता है तो वो कौन सा एरर देगा, वो देगा कंपाइल टाइम एरर। कौन सा एरर देगा? कंपाइल टाइम एरर। ओके, और जब आप लोग क्लास डिफाइन करते हो और डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पे आप लोग प्राइवेट और पब्लिक डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो वेरिएबल है वो क्या डिक्लेयर हो जाएंगे? प्राइवेट। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास वेरिएबल एंड द मेंबर फंक्शन आर द प्राइवेट। आप लोग ने सपोज डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट डिक्लेयर हो जाएंगे। ओके, सो ये है आपका प्राइवेट।
जो जब आप लोग कोई भी डेटा मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड। Now protected is the last access specifier and it is similar to the private. It make the class member inaccessible outside the class but they can be accessed by any subclass of the class. मतलब ये क्या है कि प्रोटेक्टेड जो है वो हमारा प्राइवेट जैसा ही वर्क करता है। ओके, तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी दूसरा क्लास हमारे मेंबर फंक्शन एंड वेरिएबल को और डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, बट वो जो क्लास है उसका जो कोई सब क्लास हो तो वो उस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास ए इज़ इनहेरिटेड बाय क्लास बी। ओके, तो बी क्या हो गया, उसका सब क्लास हो गया। तो जो बी जो है वो बी क्लास है वो यूज़ कर सकता है हमारे एक के जो फंक्शन है उसको। ओके, सो यहाँ पे देखो आप लोग क्लास प्रोटेक्टेड एक्सेस, देन प्रोटेक्टेड आप लोग को प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करना है फॉर डिस्प्लेइंग और एक्सेस सेट द प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। सो यहाँ पे प्रोटेक्टेड इंटीजर वाई वॉइड डिस्प्ले। ओके, सो ये प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या रहेगा, इट इज़ सिमिलर टू द प्राइवेट बट जो भी क्लास है उसके सब क्लास है वो उसके मेंबर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक डेटा मेंबर? अ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास कैन बी मेड एज अ स्टैटिक। नाउ हियर द स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हैज़ अ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक मेंबर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है तो कौन सी है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट वन इज इट इज़ इनिशियलाइज्ड टू ज़ीरो। जो स्टैटिक डेटा मेंबर हुआ है तो फर्स्ट आपको क्या करना है, उसको ज़ीरो इनिशियलाइज करना है। सो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड। ओके, सो आप लोग को क्या करना है, जो स्टैटिक डेटा मेंबर है फर्स्ट यू हैव टू इनिशियलाइज, उसको ज़ीरो इनिशियलाइज करना है। ओके, जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। देन सेकेंड वन है ओनली वन कॉपी ऑफ द दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड इट इज शेयर बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आप लोग ने स्टैटिक डेटा मेंबर रखा है तो उसका एक ही कॉपी आप लोग क्रिएट कर सकते हो और दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट है स्टैटिक का मीनिंग क्या है कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, सो तो एक उसका एक ही कॉपी बनेगा और फॉर एग्जांपल आप लोग ने 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ओके, तो ये 5 ऑब्जेक्ट है वो उसके लिए उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। ओके, देन इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट इज़ लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम। ये जो क्या है, ये जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है दैट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास, उसको हम लोग क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं पर उसकी लाइफ टाइम कहाँ तक रहेगी, फॉर द एंटायर प्रोग्राम। सो ये हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर दैट यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको पहले आपको इनिशियलाइज करना है ज़ीरो, फिर आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसके लिए सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी और दूसरा है कि उसके दैट कैन बी विजिबल विद इन द क्लास ओनली। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। नाउ यहाँ पे द वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इनिशियलाइज टू एनी गार्बेज वैल्यू। आप लोग कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो इसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि कोई भी गार्बेज वैल्यू उसकी इनिशियलाइज वैल्यू हो रहेगी। बट कोई भी आप लोग स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इनिशियलाइज टू ज़ीरो। स्टैटिक वेरिएबल है उसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो। ओके, देन वेरिएबल number of copy of the variable are created. For example, the number of object are 3, then there is 3 copy of the variable is created। मतलब वेरिएबल है आप लोग उसकी कितनी भी कॉपी क्रिएट कर सकते हो बट इन स्टैटिक वेरिएबल द वन कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज क्रिएटेड। स्टैटिक वेरिएबल है तो उसकी एक ही कॉपी बनेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है तो वो 3 ऑब्जेक्ट को एक कॉपी को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। बट वेरिएबल में क्या रहेगा कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है तो आपके पास 3 वेरिएबल क्रिएट होगा। ओके, देन नेक्स्ट है इट इज़ विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट द लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम इफ इट इज़ पब्लिक वेरिएबल and the lifetime is only the class and the function if it is the private variable। okay, देखो यहाँ पे
ये जो वेरिएबल है दैट इज़ ऑल्सो द विजिबल ओनली, वो हम लोग क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम लोग उसको पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तो उसकी लाइफ टाइम कहाँ तक रहेगी, टू द एंटायर प्रोग्राम। बट जब हम लोग ने उसको एज अ प्राइवेट डिक्लेयर किया तो उसकी लाइफ टाइम कहाँ तक रहेगी, वहाँ जहाँ तक है उसका सो लाइफ टाइम ओनली टू द क्लास। ओके, देन स्टैटिक वेरिएबल है, इट इज़ द विजिबल ओनली विद इन द क्लास बट इट लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम। जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो भी सिर्फ क्लास में ही विजिबल है, पर उसके लाइफ टाइम तक रहेगी टू द एंटायर प्रोग्राम। नाउ दिस वेरिएबल इज यूज टू मेंटेन द वैल्यू डिफरेंस टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए 3 ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट होंगे। ओके, तो उसकी वैल्यू जो है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंटली मेंटेन होगी, बट जो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल आर यूज टू मेंटेन द वैल्यू कॉमन टू द एंटायर क्लास। जब हम लोग कोई भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे तो उसकी वैल्यू जो है सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगी। ओके, सो ये है डिफरेंस बिटवीन आपका वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ओके, देन देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम है एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिया है क्लास है दैट इज टेस्ट। एक क्लास क्या है आपका टेस्ट। ओके, और उसमें हम लोग ने एक प्राइवेट वेरिएबल लिया है दैट इज स्टैटिक इंटीजर आई। उसको हम लोग ने क्या डिक्लेयर कर दिया एज अ स्टैटिक। और दूसरे वेरिएबल दिए है वॉइड गेट डेटा इंटीजर एन देन पुट डेटा। ओके, तो गेट डेटा क्या करेगा, आई की वैल्यू को रीड करेगा और पुट डेटा आई की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे देखो इन आवर मेन प्रोग्राम द टू ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड दैट इज T1 एंड T2। ओके, सो आप लोग को क्या करना है, पहले इनिशियलाइज करना है वैल्यू ऑफ आई इन T1, फिर दूसरे में आप लोग को आई की वैल्यू फिर इनिशियलाइज करनी है। तो आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, T1 डॉट पुट डेटा एंड T1 डॉट गेट डेटा दैट इज 5। ओके, फिर आप लोग को क्या करना है, वो वैल्यू को प्रिंट करना है। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक हम लोग ने वेरिएबल लिया है इंटीजर आई, उसको हम लोग ने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया। ओके, दूसरे हम लोग ने क्या किया है, 2 फंक्शन यूज़ किए दैट इज गेट डेटा एंड पुट डेटा। गेट डेटा से क्या करेंगे, हम लोग आई की वैल्यू को रीड करेंगे और पुट डेटा से आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। ओके, फिर इन मेन प्रोग्राम में हम लोग ने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं दैट इज T1 एंड T2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू T1 के लिए प्रिंट करवाएंगे और दूसरा हमारा क्या करेंगे, T2 के लिए प्रिंट कराए। तो यहाँ पे देखो आप लोग का आउटपुट में दिख रहा है कि स्टैटिक जो वेरिएबल रहते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहती है, 0। जो हमारे जो कोई भी वेरिएबल रहते हैं उसकी इनिशियलाइज वैल्यू रहती है कोई भी गार्बेज वैल्यू, बट जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी इनिशियलाइज वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियल वैल्यू दैट इज 0। सो यहाँ पे आउटपुट में देखो आप लोग ने पहले हम लोग ने प्रिंट करवाया तो क्या आ गया, 0 0। ओके, फिर हम लोग ने क्या आई के वैल्यू को रीड किया चेंज किया 5, तो क्या प्रिंट करेगा 5। ओके, सो दिस इज आवर स्टेट एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, then our next topic here that is static member function. Now like the static member variable we can create the static member function। ये हम लोग ने क्या देखा कि कोई भी स्टैटिक डेटा मेंबर मतलब कोई भी डेटा है उसको हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर किया। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक फंक्शन है उसको स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर स्टैटिक हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी उसकी, a static function can access to the only other static member declare in the same class। स्टैटिक फंक्शन है तो उसमें क्या रहेगा, जो भी हम लोग क्लास में जो भी स्टैटिक डेटा डिक्लेयर किया है उसको ही वो यूज़ कर सकता है, दूसरे वेरिएबल को वो यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, देन द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम इंस्टेड ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एज फॉलो। देखो यहाँ पे कोई भी मेंबर फंक्शन रहता है उसको हम लोग को कॉल करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करवाते हैं ना। बट ये जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसको हम लोग को कॉल करना है देन वी कैन यूज़ द क्लास नेम। सो हियर वी हैव टू राइट डाउन क्लास नेम, देन यहाँ पे डॉट ऑपरेटर दैट इज योर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन आप लोग को यहाँ पे फंक्शन नेम लिखना है। ओके, सो ये हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो उसको डिक्लेयर करेंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ जो स्टैटिक मेंबर है वही यूज़ कर सकता है। और दूसरे उसका प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसको कॉल करना है, देन वी कैन टू यूज़ द क्लास नेम। ओके, सो
स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा अबाउट द क्लास ऑब्जेक्ट, हाउ टू डिक्लेयर द क्लास एंड एक्सेस द डेटा ऑफ द क्लास, देन how we can define the class inside and outside the class definition. Then we learn about our static data. Then we learn about the access specifier, that is public, private, protected. Then about the static data member and static data function. Okay, so I hope you all understand today's topic. Thank you.